Vinay ji, who is the former Rajya Sabha member and also has been the Vice President of the All India Bharatiya Janata Party. He is going to speak on India's cultural prowess as a soft power. जब तक संस्कृति है तब तक आस है, बिना संस्कृति मानवता का विनाश है. That is the theme of his speech today. We welcome Vinay ji on the stage and to this DISCON Udan. Dr. Vinay Sahasrabuddhe, a political scholar and an occasional columnist. Vinay Prabhakar Sahasrabuddhe has been appointed as President of the Indian Council for Cultural Relations since 2018. He was a member of the Parliament of India and represented the state of Maharashtra in the Rajya Sabha from 2016 to 2022. He also served as National Vice President of Bharatiya Janata Party from August 2014 to September 2020. As a Member of Parliament, Rajya Sabha, he has also served as the Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children and Youth and Sports. He is regarded as one of the foremost BJP and RSS intellectuals. In February 2009, Sahasrabuddhe was awarded a PhD for his thesis, Political Parties as Victims of Populism and Electoral Compulsions, a Quest for Systemic Solutions, by the University of Mumbai. When Nitin Gadkari was appointed President of the BJP in 2009, Sahasrabuddhe served as Gadkari's political advisor. He was a member of BJP's Vision Document Committee for the 2014 Indian General Election and later a member of the Manifesto Committee in 2019. Dr. Sahasrabuddhe was also in charge of BJP's Good Governance Department for a long time. Dr. Sahasrabuddhe co-authored a book called The Innovation Republic, outlining key governance innovations during the first tenure of Prime Minister Shri Narendra Modi. He has also authored a book, Beyond a Billion Ballots, published on 27 June 2013. He has occasionally contributed to many English and Marathi language newspapers and weeklies. He has also authored a few books in Marathi. In 1998, he received the award for Best Literary Work from the Government of Maharashtra for his co-edited Marathi book, Nivrak Manos. Dr. Vinay Sahasrabuddhe. Rotarian Madhav Kulkarni ji, who is the president of this district, all other office bearers of this Rotary district, and delegates attending this conference, ladies and gentlemen. Let me tell you that I am very comfortable, and not just comfortable, but perhaps I should say that I feel at home whenever I am with a Rotary Club or a program conducted by a Rotary Club. This is because many of you may not be knowing that it was thanks to the Rotary Club and the Rotary movement that I was able to get the Rotary Ambassadorial Scholarship way back in 1998. It was this scholarship which took me to United States, where I could start my study for my doctoral research, and later on I could complete my doctorate as well. So I have a different relationship with the Rotary Club, and therefore I am indeed very grateful to all of you to have invited me to address you. Thank you very much. रोटरी के साथ जो संबंध आया, उसी के कारण 98-99 में जब मैं यूएस में था मेरे रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, तब रोटरी इंटरनेशनल के शिकागो स्थित मुख्यालय को भेंट देने का भी अवसर मुझे मिला। और वहाँ पर बहुत सारे रोटेरियंस और रोटरी स्कॉलर्स आए थे, विश्व भर के, जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे।
तो एक प्रसंग मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल में जो पहले एक प्रार्थना सभी के लिए वहाँ पर आयोजित की गई थी, वो प्रार्थना ईसा मसीह के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए थी। प्रार्थना में हम सभी सहभागी हुए और जब अंतिम सत्र में प्रश्नोत्तर का विषय आया तो रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष उस समय के जो थे, उनके सम्मुख एक मिडल ईस्ट के रोटेरियन ने, रोटरी स्कॉलर ने एक सवाल पूछा। उसने ये कहा कि रोटरी तो वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व की है, सभी मतों के, सभी उपासना पद्धतियों के लोग इसमें सहभागी है, तो आपकी ये प्रार्थना जीसस क्राइस्ट को उद्देश्य का उल्लेख करते हुए ऐसी क्यों है? तो रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष महोदय ने बहुत सटीक जवाब दिया। He said that after all, Rotary is a movement that has grown and spread all over the world, but originated in a country, in a region where the worshippers of Jesus Christ were, of course, in a majority. And therefore, we continued with the practice. But let us understand that Rotary considers this particular prayer as a non-denominational prayer, and therefore, if you are worshipping any different God, consider that this prayer is addressed to your God as well. I think this is what is the message of India. अभी योगेंद्र यादव जी ने जो बहुत प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया, एक दृष्टि से वो पूरा चित्र हमारे सम्मुख खड़ा किया, तो करगिल में जो हमारे जवान शहीद हुए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत माता के लिए दिया, और उसकी कहानी सुनते सुनते हमारे आंखों के सामने वो पूरा चित्र भी प्रस्तुत हुआ, रोंगटे भी खड़े हुए, रोमांचित हुए हम। ये कोई केवल एक भूभाग की रक्षा के लिए थोड़े ही ना लड़ रहे थे। वो बर्फीले चट्टानों पर जहां कोई आदमी रहता भी नहीं, वैसे उनकी रक्षा के लिए ये नहीं था। ये सर्वोच्च बलिदान जिन शहीदों ने दिया, जिनके साथ हमारे योगेंद्र जी थे, वो बलिदान भारत की संकल्पना की रक्षा के लिए था। दैट वॉज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया एज वेल, and that idea of India which is housed here, because without geographical area no idea of India can flourish, and therefore that is equally important beyond doubt. But basically when we protect India, we protect the philosophy of India, we protect the world view of India, we protect the idea of India. और यही है भारत की सांस्कृतिक संपदा। मैं उसको सौम्य संपदा कहता हूं, अंग्रेजी में उसे सॉफ्ट पावर बोला जाता है। और कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि हम ही भारत के लोग अपनी इस सौम्य संपदा के प्रति इतने अनभिज्ञ है। वी आर सो इग्नोरेंट दैट मेनी ऑफ अस, आई एम अफ्रेड, डू नॉट नो दैट वी डू नॉट नो। हमें पता ही नहीं कि हमें पता ही नहीं है। और इसलिए ये विषय जब मिलिंद कुलकर्णी जी और बाकी सब लोगों से चर्चा हो रही थी, तब इस विषय को मैंने कहा कि शायद ये रखना उपयोगी होगा, क्योंकि ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसका काम मेरे पास एक महीना पूर्व तक था अध्यक्ष के नाते, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं इस विषय पर ही कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं कुछ चंद मिनटों में। अभी अभी हमने देखा कि अयोध्या में राम लल्ला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई, और पूरे विश्व समुदाय में एक तरीके से उसके प्रतिध्वनि भी हमें दिखाई दिए। ये रामायण महाभारत
हमारे महाकाव्य, अवर एपिक्स, ये क्या है? दे आर सॉफ्ट पावर। हम भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से रामायण महोत्सव करते हैं 2015 से लगातार, और विश्व के अन्य देशों के लोग रामायण की प्रस्तुति करने के लिए आते हैं। कोई किस कथा को, कोई और किसी कथा को प्रस्तुत करते हैं, बहुत बेहतरीन नृत्य और संगीत के आविष्कार से। तो एक बार हमारे कार्यालय ने विभिन्न देशों को निमंत्रण भेजे, उसमें ब्रुनेई को भी भेजा। एंड मेनी ऑफ यू, आई एम श्योर, आर अवेयर दैट ब्रुनेई इज ए कंट्री वेयर 100% population is that of the adherents of Islam. And therefore in our office there was a discussion whether Brunei people will come or not. Because how can they worship Ram and how can Ramayana could be a part of their tradition? That was the understanding. But much to our surprise and pleasant surprise, the Brunei government sent a cultural troupe and they presented very beautifully the story of Jatayu Vadha in Ramayana. So after the function was over, when we were having some discussion over a cup of tea, one of our officials told the Brunei people that we were apprehensive. आप भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, ऐसा हमें लग रहा था, क्योंकि आपके देश में तो 100% इस्लाम के अनुयायी है। तो ब्रुनेई के उस सांस्कृतिक डेलीगेशन के प्रमुख ने कहा कि बॉस, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक. वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन, but we have not changed our culture. That is the message of Ramayana and Mahabharata. It is not for no reason that in Indonesia, in Malaysia, in Thailand, in Cambodia, in Vietnam, in Myanmar, in Sri Lanka, everywhere we find deep influence of Ramayana and Mahabharata. मेरा तो सुझाव है कि जैसे सार्क है, बिम्स्टेक है, अन्य छोटे बड़े संगठन है देशों के, ऐसा एक रामायण महाभारत कंट्रीज का भी एक समूह होना चाहिए, क्योंकि रामायण महाभारत ये विश्व की विरासत है। ये हमारे संस्कृति की प्रभाव की रेखा है। ये कोई केवल भौगोलिक सीमाओं के अंदर सटा हुआ, उसमें सीमित किया गया हमारी संपदा का विषय नहीं है। उसमें विश्व मानस पर एक दृष्टि से एक प्रभाव निर्माण किया है, और यही कारण है कि हम अपनी सौम्य संपदा की सम्मान की चिंता करें, उसके बारे में सजग रहे। बहुत सारी बातें बताई जा सकती है, समय कम है, मगर मुझे आज भी वो प्रसंग याद है जब मैं उज़्बेकिस्तान गया था। और उज़्बेकिस्तान में ताशकंद, समरकंद, बुखारा, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, ऐतिहासिक विश्वविद्यालय। एंड इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, especially in Bukhara and Samarkand, the Indian delegation which I was leading was welcomed by the locals, the local students, by playing the tunes of Awara Hoon, which is one of our very famous Bollywood songs. ये भारत की हमारे फिल्म जगत का भी एक बहुत दूर तक फैला हुआ प्रभाव है। लोगों को सास भी कभी बहू थी अभी भी याद है। अभी भी भारतीय फिल्मों की जो मोहिनी है, विश्व के बहुत सारे देशों के लोगों के मनमानस पर अक्षुण्ण है, जीवित है, प्रभावी है। और ये केवल हमारी फिल्मों तक सीमित नहीं है, ये भी एक हमारी सॉफ्ट पावर है, सौम्य संपदा है। मगर हमारे रेस्टोरेंट्स की बात करूं तो आपको तो पता ही है, आप में से बहुत सारे लोग विदेश जाते रहते हैं, कि आज इंडियन रेस्टोरेंट ये एक ब्रांड बन गया है। और विश्व के हमारे आड़ोस पड़ोस वाले कुछ देश है जो इंडियन रेस्टोरेंट का बोर्ड लगाते हैं, यद्यपि वो भारतीय नहीं है। वो कौन है आप जानते हैं, क्योंकि वो अपने देश का नाम लगाएंगे तो कोई आएगा ही नहीं। इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट का ब्रांड यूज करते हुए, भारतीय व्यंजन खिलाते हुए वो अपना कारोबार करते हैं। ये भी हमारे संस्कृति के
प्रचार और प्रसार के अग्रदूत है। हमारी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इन्हीं के योगदान को देखते हुए एक अन्नपूर्णा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इसी साल शुरू किया है। और जो भारतीय रेस्टोरेंट जो भारतीयों ने चलाए हैं, जो भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी प्रदेशों के व्यंजन खिलाते हैं, उनको हम साल में अन्नपूर्णा पुरस्कार देने वाले हैं, अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट देने वाले हैं, क्योंकि वो हमारी माता अन्नपूर्णा की जो संस्कृति है उसका परिचय करा रहे हैं। यही हाल हमारे संगीत का है। कई बार दुख होता है कि जब हम आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्यकरण के वकील बन जाते हैं। We don't have any quarrel with the West. There are certain elements, and Swami Vivekananda, Yogi Arvind have appreciated certain aspects of the Western culture as well, and we all respect them, no doubt about it. But that doesn't mean that everything Western is equal to modern. Modernity is different. कई बार तो मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय में बोला कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में भी दुर्भाग्यवश आयुर्वेद को हम आयुर्वेद कहते हैं, मगर एलोपैथी को बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन, एज इफ आयुर्वेद इज नॉन मॉडर्न. इट इज नॉट. आयुर्वेद ऑल्सो इक्वली मॉडर्न. और इसलिए हमने वेस्टर्नाइजेशन की ये जो एक लहर चली हुई है उसमें प्रवाह पतित होकर बहना, इससे अपने आप को रोकना चाहिए. और इसलिए हमने बीच में एक प्रयास किया, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वावधान में कई सारे संगीत की दुनिया की हस्तियों को इकट्ठा करके हम एक डेलीगेशन लेकर हमारे जो सिविल एविएशन मंत्री है ज्योतिरादित्य जी, उनको मिलने के लिए गए. और हमने ये कहा कि भारत में जो विमान कंपनियां अपना कारोबार करती है, उनको कृपया आप एडवाइज करिए कि वो भारतीय यात्रियों के लिए भारत में चलने वाले विमानों में जो संगीत बजाया जाता है वो भारतीय संगीत होना चाहिए. उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बाद में 2 दिन बाद उसकी एक एडवाइजरी निकाली. ये कोई मैंडेटरी तो नहीं किया जा सकता, हर किसी को अपने अपने अधिकार के अनुसार निर्णय करना होता है, बट यस, he agreed and he issued an advisory. But the sad part of the whole story is that after the advisory was issued by the Ministry of Civil Aviation, very sadly, this particular suggestion or maybe a demand made by several leading lights of Indian music world, उसमें शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, वाद्य संगीत सभी के लोग थे. इनकी ये जो डिमांड थी, इनकी जो मांग थी, उसके ऊपर हमारे देश के टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और कई सारे समाचार पत्रों ने आलोचना की, ये कहते हुए कि ये तो बड़ा दकियानुसी है, ये संकीर्ण है, हमने ऐसा भारतीय संगीत क्या होता है. आई वॉज अघास्ट. भारतीय संगीत सुनाओ, ये डिमांड क्या हम ब्राजील में करने वाले हैं? ये तो भारत में ही करेंगे. मगर जैसे मैंने कहा कि हमारी सौम्य संपदा की, हमारी सांस्कृतिक संपदा की ताकत क्या है, उसका मूल्य क्या है, इसका शायद हमें ही जितना एहसास होना चाहिए नहीं है. और इसलिए ये जरूरी है. और जब मैं हमारी सॉफ्ट पावर की बात करता हूं, let me also explain that it is not just about music and dance. It is not just about our culinary and cuisine traditions. It is not just about our art, maybe fine art, our sculptures, our temples, our epics, our movies. Yes, of course it is there. But it is much more beyond that, because our soft power is all about the idea of India, the philosophy of India, the world view of India. और उसके जो प्रमुख पहलू है उसमें सबसे अहम है हमारी spiritual democracy. Sadly, in our country,
we equate democracy with elections. We equate democracy with voting. Yes, of course, elections and voting are extremely important, beyond doubt. But democracy is not just about that. Democracy is about large-heartedness. Democracy is about accommodation. और इसलिए हमारे देश में हमने कभी नहीं कहा कि केवल एक ही भगवान की पूजा करिए, माय वे और हाई वे, ये हमने कभी नहीं कहा। संसद भवन के अंदर जो विभिन्न स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, द ट्रुथ इज वन, द वाइज मैन डिस्क्राइब इट डिफरेंटली, एंड दैट हैज बीन आवर कार्डिनल बिलीफ, आवर कमिटमेंट, आवर फंडामेंटल वैल्यू, आवर वर्ल्ड व्यू। और इसीलिए हमने हर किसी संप्रदाय और मत का स्वागत किया। बट द फैक्ट रिमेन्स that in a spiritual democracy, every other way of worship will have to accept ekam sat vipra bahuda vadanti. केवल किसी एक ने एक्सेप्ट करने से ये काम नहीं होगा। मगर बात सही है कि भारत की जनतांत्रिक परंपरा हमारी आध्यात्मिक परंपराओं से निपजी हुई है, ये कहीं विदेश से आई हुई नहीं है। ये कोई ब्रिटिशों ने हमें जनतंत्र सिखाया नहीं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, इंडिया इज ट्रूली द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज द डेमोक्रेटिक थॉट हैज जनरेटेड हियर इन दिस लैंड। वी आर द गंगोत्री ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड डाउट। कई अन्य बातें हैं। अभी हमने G20 को देखा एंड द मोटो वाज वसुधैव कुटुंबकम, नॉट ए स्मॉल थिंग। No other country has said that the world is one family. We have said it because it is our belief. It is our understanding. It is something which we are committed to. It was not for no reason, ladies and gentlemen, that when Ukraine and Russia war was at its peak, when India was trying to rescue its own students, many other countries approached us and told us that if you are taking maybe 10 buses, why don't you have our 2 buses also be a part of your kafila so that they also could be rescued safely and secured manner, because Indian flag has become the symbol of Vasudhaiva Kutumbakam. यही आवश्यकता है और इसको हमने समझना चाहिए कि ये हमारी सौम्य संपदा है, जिसके ऊपर हमारा आग्रह भी होना चाहिए, जिसके ऊपर हमने स्पष्टता से बातें रखनी भी चाहिए। हमारे यहां हम देखते हैं कि व्यक्तिगतता और सामूहिकता, इसका एक संतुलन है। वी नो इंडिविजुअल राइट्स, वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट स्पेस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिविज्म। हमारे यहां सारी आंट और सभी अंकल नहीं होते। हमारे यहां मामा होता है, चाचा होता है, मासी होती है, फूफा होती है, because we respect every other relationship. इसका मतलब है कि हमारी परिवार व्यवस्था, our family system, where we respect every individual, हमारे शास्त्र तो कहते हैं प्राप्ते तु षोडश वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत, that is our youth policy. Post attaining the age of 16, every child should be treated like a friend. हमें औरों ने बताने की जरूरत नहीं है। और इसलिए व्यक्तिगतता, सामूहिकता के संतुलन की बात हो, प्रकृति की पूजा की बात हो, अभी सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत चर्चा चलती है विश्व भर में, यूनाइटेड नेशंस में। बट वी नो दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर एंड कॉन्फ्लुएंस विथ नेचर हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड व्यू। हमने कभी नहीं कहा कॉन्क्वेस्ट ओवर नेचर, नेवर। We always said confluence with mother nature. आज भी कई घरों में बुजुर्ग लोग अपना दिन प्रारंभ करते समय एक प्रार्थना कहते हैं, जिसके शब्द है विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। Seeking the forgiveness of Mother Earth. Why? Because I am going to now put my feet on you. Hey mother, please forgive me. This element of gratitude tells us to respect nature.
ये हमारी भारतीय संस्कृति का चिंतन है, ये हमारा वर्ल्ड व्यू है। और इसलिए ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है, मगर संक्षेप में अगर कहना है तो आज विश्व में सब जगह जब रिलेशनशिप के बारे में सभी तरीके की, व्यक्ति की प्रकृति के साथ, मनुष्य की प्रकृति के साथ, व्यक्ति की समाज के साथ, व्यक्ति की व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के अपने परिवार के साथ, सदस्य की अपने संगठन के साथ भी जो रिलेशनशिप है, उसके सम्मुख बहुत सारी चुनौतियां जब निर्माण होने का ये दौर हम सब अनुभव कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति का जो चिरंतन पहलू है वो है संबंधों का परिष्कार, रिलेशनशिप कल्टीवेशन। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल टुडे। आज अगर हम इसको मानेंगे तो मैं मानता हूं कि जैसे योगी अरविंद जी ने एक बार कहा था कि भारत में शायद विश्व की ऐसी एक भी समस्या नहीं है जो अनुपस्थित है। यू टेल मी अ प्रॉब्लम एंड इट इज वेरी मच प्रेजेंट इन इंडिया। एंड देन योगी अरविंद फर्दर सेड, बट लेट मी टेल यू दैट इंडिया इज द ओनली लैंड वेयर we have the guts, we have the prowess, we have the ability to find solutions to all these problems that the global community is facing. और इसलिए लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। पीएम साहब ने कहा दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर। सब लोग कहने लगे यस यस मिस्टर मोदी इज राइट, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर। जो हम कहते हैं उसका प्रतिध्वनि आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है। लोग चाहते हैं कि भारत नेतृत्व करे, और इसलिए इसकी महानता को, इसकी महत्ता को हम सब समझे, इतना ही मेरा निवेदन है। मैं अंत में केवल 2 छोटे प्रसंगों आपको आपके साथ शेयर करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं एक बार मेरे काम के सिलसिले में प्रवास में गया था जर्मनी। तो जर्मनी में कुछ युवाओं को मिला, मेरे ट्रेन के कंपार्टमेंट में थे। मैं नवभारत टाइम्स पढ़ रहा था जो मैंने एम्बेसी से उठाया था। तो बच्चे ने कहा कि सर आर यू फ्रॉम इंडिया? आई सेड yes of course, but how did you recognize? Then he said, sir, I have seen this script when I was there in India. Then naturally our conversation followed, and he told me that originally he had a plan of being in India for about a couple of weeks. He spent more than 2 months. Then naturally my curiosity grew, and I asked him that what is your impression about India? And he said, sir, to be a little blunt, हमारे लोगों को ना इतने सारे लोग इकट्ठा रास्ते पर देखने की आदत ही नहीं है। उसी से हम डर जाते हैं कि कितने लोग हैं भाई रास्ते में, हमारे तो सुनसान गलियां होती हैं। फिर उसने ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ने से लेकर लिटर, कचरा, गंदगी, बहुत सारी बातें कही। तो मैंने कहा बॉस, आपके मन में इतनी नेगेटिव परसेप्शन है भारत की, then tell me what is the secret that you extended your stay, which was originally for a couple of weeks, and you stayed for 2 months. Why? उसने कहा सर this is a right question, and let me tell you, अगर आप यूरोप के रास्तों में घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर किसी के आंखों में जो रोशनी होती है वो बुझी हुई है। भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति की आंखों में मुझे वो रोशनी दिखाई दी, और उस रोशनी के कारण मैं भारत, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये है, ये जो जिजीविषा है, ये जो जीवटता है, ये जो एंड्योरेंस है। भारत का वर्णन हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। कितना सुंदर वर्णन है। और इस सिविलाइजेशन के हम यात्री हैं, इस प्रवास के जो अंतहीन यात्रा है उसके हम यात्री हैं। कितना अहोभाग्य है। हमें चाहिए कि हम अपने बलस्थानों को समझें। हमारे एक मित्र जो पहले भारत में पढ़ाया करते थे एक स्कूल में, he later on went to US and started teaching over there. His wife is a physiotherapist. He got a good job, a lucrative pay package. So naturally he went. So when I met with him, I asked him what is the difference between teaching in India and teaching in US. He said there are many things. Some things are good over here, some things are good over there. But let me share with you a particular incident. उसने कहा कि जब मैं कक्षा 11वीं के छात्रों को यहाँ पर पढ़ाता रहा
तो एक दिन मुझे ध्यान में आया कि मेरे क्लास में बैठा हुआ एक बच्चा 15-16 साल का होगा, टीनेजर, सुबह 11 बजे के क्लास में भी सो रहा है। तो मैंने उसको एक बार थोड़ा धक्का देके उठाया, दूसरी बार भी किया, लगातार ये चलता ही रहा। तो चौथे पांचवें दिन जरा मैं सख्ती से उसके पास गया और उसको खड़ा किया, और इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं, उस लड़के ने कहा कि सर, टीचिंग इज योर जॉब, वेदर टू लिसन टू योर लेक्चर और नॉट इज माई लिबर्टी। इसका मतलब है कि मुझे सोने दो, आप अपना अपना जो भी भाषण करना है करते जाओ। अभी इस तरीके का एक ब्लंट रिस्पॉन्स हमारे भारतीय शिक्षक को तो इसकी आदत नहीं है। सो ही गॉट ए लिटिल स्पीचलेस, फ्लमॉक्स्ड, परप्लेक्स्ड। उसने वहां पर कुछ संवाद किया नहीं, मगर बाद में उस छात्र के पीछे पढ़ पढ़ के, एंड एन अनयील्डिंग स्टूडेंट, ए 15-year-old, finally gave up and decided and agreed that he will have a discussion with the teacher. So naturally, over a cup of tea, both the teacher and the taught discussed. छात्र ने कहा कि सर, I know why are you curious to know as to why am I sleeping? तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। मेरी माता ने मेरे लिए एक नए पिता घर में लाए हैं। अभी ये जो नए पिता है वो नहीं चाहते कि मैं घर में बैठूं, तो इसलिए घर में रहूं। इसलिए उन्होंने मेरे पीछे एक बार बार ये कहना शुरू किया है कि आई शुड फाइंड ए सेपरेट अकोमोडेशन फॉर माई सेल्फ। एंड हैविंग fed up with this kind of bullying by my new father, I have decided and I have promised him that within 6 months I'll find a new accommodation, either in a hostel or somewhere, and I will move out of this residence. मगर मैं कैसे करूं? मेरे पास पैसा तो नहीं है, माता जी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, पिता ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं क्या करूं? So I have started working in a McDonald's shop where I work between 10 in the night up to 3 o'clock in the morning. I come home at 4 o'clock. मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं जगूं और जगते जगते यहाँ पर आऊं और क्लास में बैठे बगैर झपकिया मैं क्लास को अटेंड करूं। But now it is humanly impossible for me to remain awake, which is why I am dozing off, which is why I am sleeping in the classroom. But the student said, sir, since you are from India, you have taken the pains to go to the root cause as to why I am sleeping. No American teacher would ever do this. This is India. This is the strength of our relationship. This is the strength of our world view. और इसलिए हमें चाहिए कि इसको हम समझें, समाज को समझें, समाज की ताकत को समझें, समाज की संवेदना को समझें, समाज की संस्कृति को समझें। I don't know whether many of you have read what Mark Tully has said in his book, No Full Stops in India. Wonderful book. I would strongly recommend, although an old book kind of, but everybody should go and grab a copy of it and read it. In his book, in a particular chapter, Mark Tully says that the need of the hour is to enhance the level of consciousness of the people, commoners in India, and take them to a different level. But unfortunately, the Western people and the elites in India, and there are many, try to put a full stop in a land where there is no full stop. They don't recognize the rustic wisdom, the consciousness of the people. मैं मानता हूं कि अगर हम हमारे लोगों की ये जो सूझबूझ है, ये जो सोचने की पद्धति है, ये जो तरीका है, ये संबंधों की अहमियत को और ताकत देने की जो उनकी क्षमता है, उसका हम सम्मान करेंगे, तो भारत एक सुपर सॉफ्ट पावर तो है ही, उसको वाकई में सॉफ्ट पावर बनना कुछ कठिन नहीं है, बशर्ते हम भारत की जनता की इस ताकत को, हमारी संस्कृति के इस सामर्थ्य को समझें और भारत को एक महान देश बनाने के काम में अपने पद्धति से योगदान दें। बहुत धन्यवाद।